अच्छा सर, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਸਸੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਹੈਡ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਸੀ ਐਸਪੀਬੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਐਲਈਜ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਡੀਐਮਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸਰਵਿਸ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਰ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 40 ਕਰੋੜ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 85 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਚ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਮਿਲਕਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਆ ਗਿਆ, ਕੌਬਲਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਰਕਰ ਆ ਗਿਆ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਆ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੀਐਫ ਔਰ ਈਐਸਆਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ 15,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਇਹਦਾ ਸਰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ? ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਬਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿ ਹਰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨੂੰ मिल सके। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार जी, मेरा नाम नवीन शर्मा है, मैं सीएससी हेड ऑफिस से हूँ। आज यहाँ पे मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा लगा है लोगों से मिलके, और साथ साथ हमारी स्कीम जो है ई श्रम, जिसके बारे में जसपाल जी ने बताया, उसका भी लॉन्च किया है और बेनिफिट्स मिलेगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। और जो डेटाबेस सरकार के पास नहीं है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है जो टेंटेटिव में बता रहे हैं 40 करोड़ है, तो वो जब निकल के आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ पे किस रीजन में कितने वर्कर किस तरीके से ज़्यादा काम करते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी स्कीम बना पाएगी, रोजगार के ऑप्शंस बना पाएगी। और आगे जो अभी कोविड में हमने सिचुएशन देखी कि बहुत सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, वो अपने गाँव की तरफ उन्होंने पलायन किया है, तो ये कहीं पे भी कोई भी वर्कर कहीं पे भी किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में विजिट करके अपना कार्ड बना सकता है। जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट उसको देगी, बट फ्यूचर के लिए उनके फ्यूचर के लिए एक देश में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो वो देश को आगे बढ़ाने में एक सहयोग रहेगा। और सीएससी सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रही है, सीएससी की एक सर्विस और है, ग्रामीण नौकरी पोर्टल, जो हम लोग अपने सीएससी वीएलईज के थ्रू चलाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे वीएलईज से भी और हमारे सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भाई बहन हैं उनसे भी, वो अपना रजिस्ट्रेशन उसमें भी करवाएं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ई श्रम वाला जो कार्ड बनेगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी वर्कर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, और उनके लिए रोजगार के ऑप्शंस कोशिश की जाएगी कि उन्हीं के लोकल एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं जो भी रोजगार के बेहतर अवसर उनको मिलेंगे। जो बड़े बड़े कंपनीज हमारे साथ काम कर रही हैं, जो लोकल एमएसएमईज हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं, और उनको वहाँ पे उनको रोजगार दिलवाया जाएगा। तो इस कार्ड के थ्रू सर आप रोजगार प्रोवाइड कराएंगे, या मतलब कि कुछ जैसे आपने बताया कि कुछ कंपनीज या कुछ कॉर्पोरेट है, जब कार्ड बन जाएगा तो उनके पास भेजे जाएंगे सर ये डाटा? या देखो, ये डेटाबेस जो नेशनल डेटाबेस जो बन रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, वो तो सरकार उनके ऊपर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, तो वो डेटा सरकार की रिपोजिटरी है, वो डेटाबेस नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम उनको अपने ग्रामीण नौकरी पोर्टल पे रजिस्टर कर रहे हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर की अपनी एक पहल है, जिसमें वो बड़ी छोटी कंपनीज से मिलके उन्हीं के लोकल कम्युनिटी में उनके लिए हम कोई रोजगार और स्वरोजगार के ऑप्शंस उनके लिए ढूंढ रहे हैं। तो दोनों ही रजिस्ट्रेशन अलग अलग हैं। आपके ग्रामीण नौकरी पोर्टल पे जब रजिस्ट्रेशन करेंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कार्ड नहीं मिलता है, बट उनका नंबर
और उनकी जो डिटेल्स है रजिस्ट्रेशन उनके पास हो जाता है। तो इन फ्यूचर जब भी उनके आसपास कोई रोजगार स्वरोजगार के ऑप्शंस ओपन होंगे तो उनको हम मैसेज या कॉल करके उनको बताया जाता है। सर, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं, ये ऑलरेडी जो होते हैं लेबर क्लास हो गई, ये इलिटरेट होते हैं, अनपढ़ होते हैं, तो इनको मतलब क्या कह के हम कहें कि ये जो आपके सीएससी वर्कर हैं, जो सीएससी सेंटर वाले हैं, वो क्यों बनाए कार्ड? उनको क्या मतलब कहा जाएगा? वो कहेंगे वर्कर तो हम पहले ही हैं, काम हम कर रहे हैं। देखो, बहुत सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, जैसे अभी भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वाली स्कीम है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है। सरकार 1 साल के लिए उनको इस स्कीम का प्रीमियम भी पे कर रही है। तो जब ई श्रम कार्ड उनको बन जाएगा तो उस कार्ड से जब भी कहीं वो जाएंगे तो एक पहचान उनकी मिलेगी। उसको कोई सरकार की कोई स्कीम लेनी होगी या उसको कहीं अपना एज ए उसको आइडेंटिटी यूज करना होगा, तो उसको एक ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसके बेसिस पे वो फर्दर उसकी कहते हैं ना पहचान के तरीके पे उसको यूज करेगा। और जानकारी तो हमें देनी है। हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसीलिए यूज कर रहे हैं, जिनको जानकारी नहीं है, जिनका नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे सीएससी सेंटर्स पे आएंगे, हम लोग उनकी जानकारी करेंगे, उनकी मदद करेंगे, कोई पैसा उनसे चार्ज हम लोग नहीं करेंगे और हम उनको वो कार्ड बना के देंगे। तो बेनिफिट तो सरकार और गैर सरकार जो भी उसको मिलेंगे उसके काम के ऊपर ही मिलता है। वो कितना काम करता है, कितना अच्छा काम कर पाएगा। तो हम लोग जो स्कीम है ई श्रम, वो तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर्स के थ्रू दे रहे हैं, बट हम उनकी स्किलिंग अपस्किलिंग भी करते हैं अपने कॉमन सर्विस सेंटर के ऊपर। जो कोई मजदूर है तो उसको मजदूरी के लिए कुछ, हमारे पास एक कंपनी है जैसे पिडिलाइट हमारे साथ काम करती है, तो जो मैसन्स होते हैं, राजमिस्त्री होते हैं, वो जब आप अपना घर बनाते हैं तो किस तरीके से घर बनाना चाहिए, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई है, उनको घर में सीपेज कम आए, कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो स्किलिंग और अपस्किलिंग का काम हम करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अभी हमने इकोनॉमिक सेंसस में काम किया तो हमने 12 लाख लोगों को देश में स्किल किया फील्ड सर्वे एनुमरेटर का काम करने के लिए। एक बहुत बड़ा डेटाबेस हमारे पास तैयार हो गया है। कोई भी सरकारी गैर सरकारी सर्वे का काम करने के लिए हमारे पास रेडी मैन पावर है, सर्टिफाइड है। सारे सीएससी ने और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन से मिलकर उनको एक ट्रेनिंग दी है और उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन दिया। तो सर्टिफाइड मैन पावर हमारे पास तैयार होगी। पूल ऑफ यू कैन से वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स हमारे पास तैयार। जो अनस्किल्ड है उसकी स्किलिंग भी करवाते हैं हम लोग। तो कॉमन सर्विस सेंटर एक वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल यू कैन से पीपल जो जिनको कैसी भी कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी को अपनी नॉर्मल रूटीन में कोई रिक्वायरमेंट है वो भी उसको वहाँ पे मिलती है। प्लस स्पेशली जो हमारा कामकाज करने वाले जो लोग हैं उनको कहीं रोजगार स्वरोजगार के ऑप्शंस ढूंढने होते हैं तो हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। कोई छोटा लघु उद्यम अपना चलाते हैं, कोई एमएसएमईज चलाते हैं तो उनके रजिस्ट्रेशन भी हम लोग करते हैं। उनको लोन की सुविधा के लिए भी कॉमन सर्विस सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, उनको लोन के लिए भी एप्लीकेशन उनकी वहाँ पे होती है। तो सीएससी पे कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वहाँ पे उनकी सर्विसेज को उनके घर के पास उनके पास दिलवा पाए विद द हेल्प ऑफ आवर वीएलटीज। ओके सर, इस ई श्रम कार्ड में सर कोई इंश्योरेंस भी पॉलिसी भी दी जाएगी जिनके कार्ड बनेंगे या कुछ इस तरह का? इंश्योरेंस उनका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है वो सरकार उनको दे रही है। जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो उनके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होती, वो कार्ड ही उनको दिया जाएगा। वो उसके बैंक अकाउंट से वो लिंक करके वो दिया जाएगा। उनकी डिटेल्स हम फिल कर लेंगे तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम गवर्नमेंट पे करेगी। गवर्नमेंट पे करेगी। थैंक यू सर।